So now we are doing some activities. Okay, and pay attention. It's very important. Okay. So now look here. Can you see what is here? Yes. Glass. ग्लास में कुछ है डला हुआ? Is there anything? Yes. कुछ है इसमें दिख रहा है आपको? It's plain. Is it plain? See, पानी है इसमें या नहीं है? है. So see, I have this. What is this? What I am holding right now? Pen. Or we can say paper clip. अब ये देखो पेपर क्लिप इज गोइंग इन द वाटर. ये तो नीचे चला गया. अब मैं कैसे निकालूं इसको? Magnet. By using magnet. मैग्नेट. लेट्स सी, कैन आई डू दैट? ये देखो मेरे पास मैग्नेट है. आई हैव मैग्नेट आल्सो. सो लेट्स सी, विल इट वर्क? इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ. उसकी अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है. नाउ आई हैव दिस बिग मैग्नेट. सो लेट्स सी, कैन यू सी इट इज नाउ हियर? कैन यू सी? Yes. अब देखें इसको बाहर निकाल पाएंगे या नहीं. लेट्स सी एवरीवन, लुक हियर. See, I'm not touching it. It is inside the water and now it is here outside. You can see it's with the magnet. Can you see this? ये कैसे हुआ? How this thing happened? Again I'm putting inside the water. ठीक है, फिर से मैंने इसे पानी के अंदर डाला. So now again I'll try to bring it back. See, again magic is going to happen. See, now it is here. Yes. So how this thing happened? कौन बता सकता है? Who can tell me? ये जो मैग्नेट है ये कैसे अपने आप आ गई? अब मैं इसी की जगह, ओके, इंस्टेड ऑफ दिस, दिस इज वुडन पीस. ओके, दिस इज वुडन पीस. अब मैं इसको पानी में डाल रही हूँ. ओके, नाउ इट्स इन द वाटर. चलो इसको देखते हैं क्या मैं इसको भी निकाल पाऊंगी ऐसे. सी, सेम मैग्नेट आई एम यूजिंग हेयर बट इट इज नॉट मूविंग अ बिट. जरा भी नहीं हिल रहा ये. क्यों नहीं हिल रहा? अब देखो सेम ही मैग्नेट है. आई एम यूजिंग द सेम मैग्नेट. देखो फिर से मैं पेपर क्लिप इसमें डाल दिया. ऊपर वुडन पीस है. यू कैन सी. सी, दिस इज कमिंग. Although you can see this paper pin is coming, but this wooden piece is not coming. Why so? What is the reason? Yes, sixth D. Yes, girl. Second bench. Corner. Yes, beta. Because magnet only attract metals like iron, uh, copper and cobalt, but not wood because it is non-magnetic material. That's right. Non-magnetic, and there is no cobalt. Cobalt नहीं, cobalt. ठीक है? You're right. That's good. You know about these elements. Yeah, that is really good, beta. So yes. So basically, wooden is non-magnetic. ये non-magnetic है. इससे attract करेगा ही नहीं wooden piece. So that's why ये जो magnet है, इसने किसको attract किया? जो पेन अभी तक इसके पास है. But wooden को मैं अभी भी इसके साथ लगा दूं, it fall down. Okay? Because it's non-magnetic. ठीक है? So all you know about the magnetic, non-magnetic materials? Yes? Yes, that's good. So when you get the worksheet, तो first question is based on this बेटा. जो first question है वो इसी पे based है जो भी हमने activity की है. ठीक है? पेपर क्लिप उसमें water के अंदर है. ठीक है? So when you get the worksheet, you will see and I विश कि आप खुद ही अपने आप आंसर इसका फाइंड करो उस ऑप्शन से. मैं आंसर नहीं बता रही राइट नाउ बिकॉज वी हैव डन दिस थ्रू एक्टिविटी. नाउ यू गॉट द आइडिया. ठीक है? सो इन विद इन 2 or 3 minutes यू आर गेटिंग वर्कशीट एंड यू विल सॉल्व बाय योरसेल्फ. ठीक है? तो फर्स्ट हमने कर लिया. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड होगा. अब ये मैग्नेट जो था
वाटर से पिन को अट्रैक्ट कर रहा था, बट व्हाई नॉट वाटर? पानी क्यों नहीं बाहर आया? पानी भी तो ग्लास के अंदर ही था ना, वाटर वॉज ऑल्सो इन साइड द ग्लास, बट ओनली पेपर पिन, दिस पेपर पिन केम आउट. What is the reason? What is the reason? Yes, sixth A, second last bench boy, corner. Sixth A, yes, beta. The magnet only attracts the magnetic material like iron, but it does not attract the non-magnetic material like rubber, chalk, etc. And rubber, and here water is magnetic or non-magnetic? Water is magnetic. Non-magnetic. Ma'am, yes, magnetic. Water is magnetic. No. Water is not magnetic. अगर magnetic होगा तो see here I have this magnet. It is doing nothing with the water. Water देखो कुछ भी नहीं हो रहा water को. So it means water is non-magnetic. अब इससे एक और चीज हमें पता लगती है बेटा, अगर कोई नॉन मैग्नेटिक चीज है और उसके पास कोई मैग्नेटिक चीज है, ठीक है, देखो मैग्नेटिक चीज मैंने फिर डाल दी. ओके, आई एम जूमिंग इट ताकि आप देख सको. So I have again put this paper pin in this glass. You can see here. अब ये देखो वाटर इज नॉन मैग्नेटिक बट दिस पिन इज मैग्नेटिक. और इस मैग्नेटिक को मैग्नेट के पास जब लाते हैं, इवन दो इट इज इन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक के पास है, बट स्टिल वी कैन ब्रिंग इट बैक, हम उसको वापस बाहर लेके आ सकते हैं. रीजन कि मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल्सो. इसका मतलब हमें ये पता लग गया नॉन मैग्नेटिक से भी, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक के अंदर होने के बावजूद वी कैन शो दिस एक्टिविटी, और वी कैन से मैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेट को पास, या फिर हम कहें मैग्नेट जो है मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है, इज इट क्लियर? नॉन मैग्नेटिक में था, वाटर इज नॉन मैग्नेटिक ऑल्दो द पिन इज मैग्नेटिक, और मैग्नेट जो है मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा इवन दो it is inside the non-magnetic material. That's good, beta. Sit down. Sit down. Okay. So that's good. अब एक और एक्टिविटी करते हैं, ठीक है. सो अगेन सब ध्यान से यहाँ देखेंगे एवरीवन ऑन द एक्टिविटी टेबल. Okay. So now what I'm going to do here, I have this paper, your worksheet basically. ठीक है, ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, so it will be more clear. See, ये आपकी वर्कशीट है. इसको मैंने ऐसे देखो ऐसे वॉल स्टैंड किया है. अब इसके एक साइड ये मैग्नेट रख दिया. ओके, एंड अनदर साइड देयर इज अनदर मैग्नेट, ये अलग मैग्नेट है. ठीक है, सो अब देखते हैं ये मैग्नेट क्या दूसरे जो इस साइड मैग्नेट है, दूसरी साइड जो मैग्नेट है उसको कुछ इफेक्ट करता है या नहीं करता. लेट्स सी दिस. ठीक है, सबको दिख रहा है? एवरीवन कैन सी दीज टू मैग्नेट्स and you can see this paper is acting like a wall. ठीक है, so let's see it is going to attract or repel whatever it can do with this. क्या इस पे कोई असर होगा? ये देखो, can you see this magnet is moving? See, अगर मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, I'll show you. Can you see this is moving itself? मैं मूव नहीं कर रही, it's magnet on the another side of the paper. See, it is moving. Yes बेटा, दिख रहा है सबको? Yes. It is moving itself. I'm not touching it, not anything. I'm not doing anything with this. Only the magnet on the another side of the paper is doing it. देखो कितना मूव कर गया. ठीक है, अब ये देखो इसी से चिपक गया. अब ये इसका मतलब
अगर हम ये पेपर बीच में ले भी आते हैं, दैट इज नॉन मैग्नेटिक. मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज मैग्नेटिक इन नेचर. अब एक चीज करते हैं. अब इंस्टेड ऑफ दिस पेपर, ठीक है, ये जो पेपर था इसकी बजाय कोई मोटी सी चीज, अब देखो पेपर कप है, अब ये इस साइड है, ऑन अनदर साइड ऑफ दिस, ठीक है, अब ये इस साइड हो गया, एंड दिस मैग्नेट इज ऑन अनदर साइड. अब देखो ये मोटा हो गया, इट इज थिकर, अब ये थिक है. क्या देखते हैं, नाउ इट विल एक्ट ऑन दिस. इज इट एक्टिंग और नॉट? Yes. हु इज सेइंग यस? हु इज सेइंग यस? Aryan. आर्यन. बेटा, कैन यू सी एनी चेंज ऑन दिस मैग्नेट मूवमेंट? क्या आपको दिख रहा है कुछ चेंज हो रहा है? No. एवरीवन बहुत ध्यान से देखो बेटा, कुछ हो रहा है? इज देयर एनी चेंज? No. नो. तो इसका मतलब नॉन मैग्नेटिक से जो असर है इस वाले मैग्नेट का वो नहीं हो पा रहा. नाउ व्हाट इज द रीजन? जबकि अभी हमने ये पेपर लिया था, सो इससे हो रहा था, इवन वाटर से हो रहा था. सो व्हाट इज द रीजन कि अब ये पेपर कप हमने इतना मोटा ये लगा दिया, तो नाउ दिस मैग्नेट इज नॉट शोइंग एनी इफेक्ट ऑन दिस मैग्नेट. व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन हो गया? ये सिक्स्थ बी सेकंड बेंच बॉय, सेम. यस. Because magnet is not in magnetic field. मैग्नेट इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड. अब इसको थोड़ा इजी वे में बता सकते हो? यू आर राइट. मैं मैम जो मैग्नेट जो मैग्नेट कप के साइड में है, तो वो ना मैग्नेट की रेंज में नहीं आ रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। यस, दैट्स राइट, दैट्स राइट, वंडरफुल. अब मुझे बताओ, बैठ जाओ बेटा, यू सिट. अभी देखो किस किस को ये पता है, ये करेक्टर, किस किस को ये करेक्टर करेक्टर पता है? आई नो, एवरीवन नो अबाउट दिस, रेज योर हैंड. Iron Man. आयरन मैन, दैट्स राइट. अब ये आयरन मैन को मैं होल्ड कर सकती हूँ अपने इस हाथ से, बिकॉज इट्स इन माई रेंज, मेरी हाथ की पकड़ में है, सो आई कैन होल्ड इट. यस. यस. Yes. अब मैं यही खड़े होके अगर इसे दूर कहीं रख दूं और मैं अपना हाथ पूरा स्ट्रेच कर रही हूँ, लाइक अभी जैसे मैंने पूरा स्ट्रेच किया है, सिमिलरली ऑल्सो आई एम स्ट्रेचिंग माई आर्म, बट आई एम नॉट एबल टू होल्ड इट. क्यों? क्या रीजन रहा होगा? इट इज आउट ऑफ माई रेंज, है ना. अगर मैं इसको पकड़ पा रही हूँ, अभी क्यों पकड़ पा रही हूँ? वाई एम एबल टू होल्ड दिस? बिकॉज इट्स माई रेंज, मेरी हाथ की पहुंच पे है, सो आई कैन होल्ड इट. इसका मेरे हाथ का असर इस तक पहुंचेगा. यस और नो? Yes. पहुंचेगा. अब किसी को मैं दूर रख दूं, ओके, मेरे सामने जरूर पड़ा है, बट इट्स नॉट इन माई रेंज, तो क्या हो जाएगा? इस पे कोई No. असर नहीं होगा. आई कैन नॉट होल्ड इट. यस. Yes, madam. You cannot hold it. Yes. तो सिमिलरली दो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ओके. लेट्स से अगेन ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ओके. सो आई हैव दिस मैग्नेट इन माय हैंड. ये देखो मैंने मैग्नेट ले लिया अपने हाथ में, ओके, दिस मैग्नेट इन माय हैंड, और ये देखो ये दूसरा मैग्नेट है. सो अब मैं इसको थोड़ा पास लेके आती हूँ. सी हियर, ये ये देखो इससे चिपक गया, ठीक है. अगेन आई एम गोइंग टू डू दिस. ये एकदम पास लेके आ रही हूँ, मगर इसको देखो अपने आप ही उठ के आ रहा है, ठीक है. लेकिन ये कब आ रहा है, ध्यान से देखो बेटा. ये जब मैं यहाँ पर इतना डिस्टेंस है, तो ये दोनों नहीं आपस में आ रहे, ना अट्रैक्शन शो कर रहे हैं ना रिपल्शन, नथिंग. अब मैं इसको थोड़ा सा और पास लेके आई, अब ये मूव करना शुरू किया. यू कैन सी, अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये मेरे हाथ से उठ रहा है थोड़ा सा, ये देखो, Yes. ठीक है. Ma'am. अब इसका मतलब क्या हो गया, इस मैग्नेट का जो असर इस वाले पे है स्टार्ट होने लगा है. अब मैं इसको थोड़ा और नीचे लाऊंगी तो सी, नाउ दीज आर अट्रैक्टिव. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई, जहां पर मैग्नेट का असर होता है, ठीक है, वेयर दे शो देयर इफेक्ट, ठीक है, इन्फ्लुएंस. तो कहां पर? हर एक जगह नहीं शो करेंगे, जहां तक उनकी लिमिट है, ओनली टिल दैट एरिया वी कैन से. तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपने कहा बेटा, सो जो भी हमने पहले पेपर लिया, इट वॉज थिन, पतला सा था, तो उससे इजली जो असर था वो दूसरे पे जा रहा था. बट वेन वी यूज दिस थिक वन,
जब हमने ये मोटा लिया तो क्या हो गया, जो उसका असर था उसके बीच में इतना मोटा डिस्टेंस, इतना बड़ा डिस्टेंस आ गया, बैरियर आ गया। ये वाला मैग्नेट उस साइड के जो मैग्नेट था उस पर असर नहीं कर पाया। ऑल्दो बोथ वर क्या थे, आमने सामने, दे वर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बट दे वर नॉट एबल टू शो एनी इफेक्ट। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक के थ्रू वो इफेक्ट दिखाते हैं, बट दैट ऑल्सो डिपेंड द थिकनेस, कितना मोटा कितना पतला है। इज इट क्लियर? यस। ओके, सो दैट इज वन थिंग। सो नाउ लेट्स सी। बेटा डिड यू गेट द वर्कशीट नाउ? अच्छा, अभी भी नहीं मिली? ओके, so this is one thing. So because I'm doing all the things or all the activities related to your worksheet only, so when you get the worksheet, now we have solved, मैं ऐसे बता देती हूँ हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया एक्टिविटी के थ्रू, क्वेश्चन नंबर 4 तक। सो जब हमें वर्कशीट मिलेगी सो वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, मैग्नेटिक कंपास किस किस ने देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन मैग्नेटिक कंपास? और यूज किस किस ने किया है ये भी बता दो, किसी ने कभी यूज किया है? मैं भी ऐसे। यस। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है? यस सर। ऐसे दिखता है? सेम वे? और कौन सी पोजीशन पे हमेशा ये खड़ा रहता है? सिर्फ नॉर्थ? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ना, इट अलाइंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आई ट्राई कि मैं आपको यहां से दिखा सकूं। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट सो दैट यू कैन सी। इज इट प्रीटी क्लियर? यस। यस। This is the magnet I was talking about. You can see needle अभी exactly north south position पे। Can you see this? ठीक है, तो मैग्नेट को चाहे आप कितनी बार ऐसे घुमा दो, इफ आई रोटेटेड मैनी टाइम्स, जो नीडल है इट विल ऑलवेज कम टू द रेस्ट ऑफ, सी अभी देखो अभी रेस्ट पे आएगी, सो यू कैन सी योर सेल्फ। सी अगेन इट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यस, यस। यस। नॉर्थ साउथ में है ये। अब मैं इसको फिर से देखो रोटेट कर देती हूँ, या फिर ऐसे ऐसे कर देती हूँ, फिर से हिला देती हूँ। सो लेट्स सी कौन सी डायरेक्शन में है। अगेन नॉर्थ साउथ। यस, यस। ओके, सो इट इज बिकॉज ऑफ आर अर्थ। ठीक है, हमारे अर्थ के कारण ये इस पोजीशन पे आती है। ठीक है, अब आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू दिस। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक मैग्नेट है, वी हैव वन मैग्नेट विद अस। ओके, सो इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लें। सो यस, सो वी हैव वन मैग्नेट, फिर उसके बाद किया है, सॉरी, कंपास, एंड दिस इज अ मैग्नेट। ओके, जब मैग्नेट देखो बेटा, अब इसको मैं आपको शो करती हूँ, ये हमारे पास मैग्नेट है। आई ट्राई कि वो ऐसे खड़ी हो जाए तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू। सो यू कैन सी नाउ इट इज अपराइट पोजीशन, है ना, सब देख सकते हो? एवरीवन कैन सी दिस? यस, इट्स इन अपराइट पोजीशन। यस, यस। यस। अब मैं इसके पास ही मैग्नेट लेके आती हूँ बेटा, सो यू कैन सी द नीडल विल शो द डिफ्लेक्शन। ये जो नीडल है ये मूव करना, जो नीडल तक आया नहीं, सो इट दिस नीडल, I think it's in upright position, that's why it's not working. I have to keep it like this. अब इसको मैं आपको I'll try कि थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाऊं। कैन यू सी नाउ थोड़ा बहुत? So you can see, देखो बेटा, if you can see the needle is moving as I'm bringing magnet। देखो मैग्नेट जब पास लाऊंगी तब वो हिलेगी नहीं, देखो इसके ऊपर रख दिया, इट विल वाइब्रेट लाइक दिस, ऐसे 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 एक ही जगह वाइब्रेट करेगी। ठीक है, जब मैग्नेट एकदम पास आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा दूर करूंगी, ठीक है, सो यू कैन सी इट विल शो डिफ्लेक्शन। ये देखो थोड़ा सा ये हिलेगी इधर से उधर, ये देखो मैग्नेट के हिसाब से यू कैन सी द नीडल इज मूविंग। कैन यू सी? यस। ठीक है, अब
द क्वेश्चन इज, अगर हम मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट और ये कंपास है, ठीक है, उसके बीच में कुछ सामान रखते हैं, लाइक वी पुट दिस पेपर हेयर और वी पुट दिस वुडन पीस हेयर, ठीक है, स्टिल इट शो द डिफ्लेक्शन, यू कैन सी नीडल इज स्टिल मूविंग, कैन यू सी नीडल इज स्टिल मूविंग, हिल Yes. रही है। तो वो ये जो भी हमने थोड़ी देर पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, वाटर के अंदर हमने पिन डाली, हमने वुडन पीस डाला, एंड इट वाज स्टिल शोइंग द मैग्नेटिज्म, ठीक है, सेम थिंग हियर इज हैपनिंग। तो अगर हम दो मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रख देते हैं, स्टिल इट शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्टिल वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस व्हाट वी कंक्लूड, अगर दो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके बीच में अगर हम कोई नॉन मैग्नेटिक रख देंगे, स्टिल दे विल गेट अट्रैक्टेड। गॉट इट? यस और नो? यस बेटा? Okay, you are getting your worksheet. Okay, ठीक है. So, Yes. okay, okay. I know. I can see you are getting your worksheet. So these are the two magnetic substance. मैंने iron nails लिए हैं दो, ठीक है. यही चीज उन्होंने बोली है, दो मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में, ठीक है, या फिर एक आयरन और एक मैं ये ले लेती हूँ मैग्नेट. अभी ये इससे इजिली अट्रैक्ट करेगा, यू कैन सी ये इसके साथ चिपक गया है, ठीक है. अब यही जो है, ठीक है, अगर मैं पेपर लेती हूँ, सी पेज इज हेयर, और ये मैग्नेट मैंने इस साइड को रख दिया, क्या ये आयरन नेल चिपकेगा इससे? सो यू कैन सी आयरन नेल देखो चिपक गया, मैंने, आई एम नॉट होल्डिंग आयरन नेल, मैंने पेपर पकड़ा हुआ है. एवरीवन लुक हियर, ठीक है. अगेन आई शो यू, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको. ये आयरन नेल है, दिस इज मैग्नेट. अब ये मैग्नेट को मैं पेपर के पीछे कर रही हूँ, इट इज हेयर ऑन द बैक साइड, ठीक है. और आयरन नेल को मैं नीचे आगे वाली साइड कर रही हूँ. आई एम नॉट होल्डिंग आयरन नेल नाउ, यू कैन सी आई एम नॉट होल्डिंग इट, माई हैंड इज फ्री, ठीक है, मेरे हाथ फ्री हैं. तो इट मीन्स पेपर बीइंग अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, पेपर नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन स्टिल, बेटा अभी वर्कशीट को मत देखो, अभी वर्कशीट मत देखो, लुक हियर, क्लियर योर कॉन्सेप्ट, ओके. सब यहाँ देखो, अभी वर्कशीट को छोड़ दो, लीव, ओके, वी विल सॉल्व इट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस. आई नो यू गॉट योर वर्कशीट नाउ. सो यहाँ देखो, आयरन नेल और मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इवन दो इन दोनों के बीच में पेपर है, दिस इज नॉन मैग्नेटिक. तो दैट इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू भी जो है मैग्नेटिक जो फील्ड है पास होती है. गॉट इट? Yes. ठीक है. तो अब नाउ यू गॉट योर वर्कशीट, ठीक है, सबको वर्कशीट मिल गया. तो नाउ एवरीवन आई एम गिविंग यू first five question we have done through the activity. So now I'm giving you 3 minutes, only 3 minutes, because it's easy. 3 minutes to get the answer of these first five questions. फटाफट करो first five questions, क्योंकि अभी हमने किया है. Now I want you to attempt, अपने आप करो जल्दी से, then I'll tell you the answer. Everyone do it fast. अभी हमने सारा एक्टिविटी के थ्रू किया है. नाउ सॉल्व इट, एंड आई होप यू कैन सॉल्व इट वंडरफुली. पहले से मुझे आपसे उम्मीद है. Solve your own question and nobody will. Yes, please. ऐसे फोर्स लग रहा है यार, ये आ रहा है ना, ये तो भी दूर तक कोई बात नहीं. डन. हो गया बेटा?
Yes. Okay, someone, okay, कुछ कह रहे हैं? No. Okay, okay, take 1 more minute and solve it. Take 1 more minute. Ma'am, done. Okay, A section has done. What about others? B section, is it done? Yes, not done. C section done. I'm done. Okay, and D section? D. Okay, wonderful, wonderful. So now I will call from firstly A section, Anmol Singh. Aajo. Anmol Singh from the A section, beta come. Yes, Anmol Singh from the A section. Yes, beta. What is the answer of first question? Ma'am, C. Yes, C. That's right. Sit down. That's right. C is the correct. यही हमने अभी किया था. Bring a magnet close to the paper clip from outside the glass. That's good. Now from the B section, Paramveer Singh. Paramveer Singh from the C section. Sorry, B section. B section. B section से Paramveer Singh. Yes, beta. Paramveer is present. Yes. So Paramveer, what is the answer of question number 2? बेटा आपकी खुद की वर्कशीट का है. वेयर इज योर वर्कशीट? परमवीर, वेयर इज योर वर्कशीट बेटा? Ma'am, I have at bench. तो बेटा उसके साथ आओ एंड टेल मी द आंसर व्हाट यू सॉल्व. Ma'am, C option. सी ऑप्शन. दैट्स राइट. सिट डाउन बेटा. दैट्स गुड. नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन फॉर दिस सी सेक्शन से जगदीप सिंह. जगदीप सिंह फ्रॉम सी सेक्शन. Ma'am, yes. So yes beta, C section. Okay, so what is the answer of third question? Ma'am, C. You're saying cardboard? Ma'am, no, ma'am, A. You're saying glass? प्रिवेंट कर रहा है बेटा, प्रिवेंट. ना यू ऑल गेट कंफ्यूज्ड. अगर देखो वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए था अगर होता. ठीक है, इट शुड बी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, इंस्टेड ऑफ डी. ठीक है, डी की बजाय वो होता. लेकिन नाउ इट्स डी. व्हाई इट्स डी? वी डिस्कस्ड अबाउट द थिकनेस. हमने थिकनेस की बात की थी. आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल. यस यू आर राइट. अब ये हमारे पास आयरन है जो इतना मोटा है और उसके पीछे ये पतली सी पेपर क्लिप है. ओके, और यहाँ हमारा मैग्नेट है. सो ये जो मैग्नेटिक की फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ यहाँ तक है. ये यहीं तक असर दिखा सकता है. तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, सॉरी आयरन को अट्रैक्ट करेगा, ये जो आयरन शीट है. बट इट इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट दिस पेपर क्लिप. गॉट इट? तो वी डिस्कस्ड कि कोई चीज दूसरे को अट्रैक्ट तब करेगी उसके रेंज के पहुंच में होगी, जो मैंने आपको आयरन मैन वाला एग्जांपल दिया था. नाउ बिकॉज इसकी मैग्नेट, इस मैग्नेट की, ओके, दिस मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ यहाँ तक है. उसकी मैग्नेटिक का जो फील्ड का असर है वो यहाँ तक है. ठीक है, तो वो तो यहीं तक ही असर दिखाएगा. तो उसका तो यहीं पर खत्म हो गया सारा असर. तो क्या होगा, इस तक इसका असर नहीं जा पाएगा. गॉट इट? इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, तो आंसर ऑफ थर्ड इज डी. इट्स डी. कमिंग टू फोर्थ.
For that, I'm going to call from the D section Agampreet Kaur. Agampreet Kaur. What is the answer of fourth? C option. Yes, it's C option. That's right. Sit down. Sit down. Now coming to fifth question, and for this again A section से Talveer Singh. Talveer Singh from A section. And everyone mark this. सब इसको ध्यान से करो. See, fifth question. A student places different materials, wood, paper, glass, plastic, between a magnet and magnetic compass or compass needle. But the needle still moves. What conclusion can be drawn? जो भी हमने किया था. बताओ. Yes, Talveer? He said C. Magnetic force acts only air. बेटा अभी हमने ये पेपर पिंगल एक्सपेरिमेंट किया था. एयर नहीं था, वाटर था. वी हैड वाटर. ठीक है, पानी यूज किया था. ठीक है. मैग्नेटिक कंपास, अभी हमने एग्जांपल लिया था मैग्नेटिक कंपास, और हमने बीच में वुडन लॉग या वुडन पीस छोटा सा रखा था, और दूसरी साइड मैग्नेट था. तो स्टिल ये जो नीडल है वो मूव कर रही थी. तो ये वाला ही क्वेश्चन पूछा है. तो क्यों कर रही थी, इससे हमें क्या पता लगता है? अगर हम एक मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेट के बीच में कोई चीज रख देते हैं और स्टिल वो अट्रैक्शन शो करती है, तो क्यों कर रही है? व्हाट इज द रीजन? A. He is saying A option. Yes, I understood. He is saying A option. ये they are magnetic, that's right. But what we concluding from this, हमें क्या पता लगता है? हम तो कह ही रहे हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ है between a magnet and a compass needle. वो तो understood है बेटा कि दोनों magnetic है. speak answer. Wait बेटा, I know many of you know the answer. Let him understand this thing also. ठीक है. तो बेटा देखो, एक मैग्नेटिक है, मैग्नेट है. ठीक है. ये हमारे पास अभी देखो, हमने एक एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको पेपर के थ्रू भी करके दिखाया था. ये मेरे पास मैग्नेट है, बार में सॉरी यू शेप मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट. इसको मैंने, ये जो पेपर है इसके बैक साइड में रखा है. ओके, इट्स ऑन द बैक साइड. ठीक है. अब मैंने जब इसे रखा, और ये जो आयरन नेल है इसको मैंने इधर रखा, तो ये, अब देखो आयरन नेल को मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर इफ यू कैन सी, आई एम नॉट होल्डिंग आयरन नेल. मैंने नहीं पकड़ा अब इसे. हु इज होल्डिंग दिस मैग्नेट? जो मैग्नेट बैक साइड में है उसने इसको पकड़ा है, और बीच में पेपर है, दैट इज नॉन मैग्नेटिक. पेपर को नहीं हम चिपका सकते, लेकिन दो मैग्नेटिक सब्सटेंस अब साथ में आ गए, इस वजह से पेपर उनके बीच में चिपक गया है. अदरवाइज पेपर इज नॉन मैग्नेटिक. पेपर इज नॉन मैग्नेटिक. आयरन नेल इज मैग्नेटिक, बार दिस इज मैग्नेट. एंड बिकॉज दिस इज वेरी थिन, पेपर बहुत पतला है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका जो असर है मैग्नेट का, वो इस तक पहुंच रहा है, आयरन नेल तक पहुंच रहा है. इस वजह से उसने आयरन नेल को होल्ड किया हुआ है. गॉट इट? अब यही चीज मैग्नेटिक नीडल के बारे में पूछिए. कंपास नीडल, कंपास नीडल सपोज कर लो यहाँ पर है, और मैग्नेट इधर है, और उसका असर हो रहा है. सो हमें इससे क्या पता लगता है कि जो नॉन मैग्नेटिक हमारे पास पेपर था या कोई भी चीज है, उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है पास हो सकती है, और दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पे असर दिखा सकती है. समझ आया बेटा? सो नाउ बेस्ड ऑन दिस क्या लगता है अब ऑप्शन? अब देखो जरा ध्यान से, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? Option. D option. Yes. Based on this, it's D option. ठीक है? Is it clear बेटा? Yes. Sit down बेटा. Sit down.
Now coming to question number 6. What is the best way Ayan can store his magnet to keep it safe? अब देखो मैंने भी ये मैग्नेट आज तो नहीं लिया, काफी टाइम से मेरे पास, एंड स्टिल इट इज शोइंग मैग्नेटिज्म। तो इसको कैसे स्टोर करना चाहिए? व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्टोर इट? मैम ए ऑप्शन। Wrap it in a cloth and place it in a box. So 6 का आ जाएगा A ऑप्शन। ठीक है। 7th का, which of these is the best safety way to prevent a magnet from getting demagnetized? मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अगर ये मेरे पास मैग्नेट है एंड आई वांट टू स्टोर इट, सो व्हाट आई नीड टू डू, अगर ये देखो साउथ पोल है ब्लू कलर का, इसके साथ मैं नॉर्थ पोल लगा दूं, ठीक है, और जो हमारे पास ये नॉर्थ पोल है इसके साथ मैं साउथ पोल लगा लूं, सो दिस विल बेसिकली प्रोटेक्ट मैग्नेटिज्म ऑफ दिस मैग्नेट। ठीक है, फिर उसकी वजह से वो प्रोटेक्ट रहेगा, बच के रहेगा। सो दैट इज व्हाट इट मेंट। सो 7th का आंसर आ जाएगा इट्स डी। कमिंग टू 8th क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू मैग्नेट्स इफ, अब मैं इस मैग्नेट को, अभी इतनी सी हाइट की बात नहीं कर रहे, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि इतने छोटी सी हाइट से आप थ्रो कर रहे, नो, आप थर्ड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर से जोर से फेंकोगे, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट गेट डीमैग्नेटाइज, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो सारी हिल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ना नॉर्थ पोल रहेगा ना साउथ पोल रहेगा, वो दोनों ही अपनी पोलैरिटी, अपनी नेचर खो देंगे। अब वो चीज अगर अपनी नेचर खो देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर कोई मेटल की चीज अपनी मैग्नेटिज्म खो देगा तो क्या होगा? इट विल नॉट एक्ट एज मैग्नेट, तो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। सो आंसर क्या आ जाएगा इसका? मैम इट विल लूज इट मैग्नेटिज्म। सो 8 का फर्स्ट का लिखो, इट मे लूज मैग्नेटिज्म। नाउ व्हाट इज ऑफ द सेकंड? सेकंड का क्या आ जाएगा? प्लेस इट इन कूल प्लेस रैप्ड इन ए कॉटन क्लोथ। सो लेट मी कॉल, ठीक है, मुझे बुलाने दो नेहा रानी फ्रॉम बी सेक्शन। नेहा रानी फ्रॉम बी सेक्शन। तो बेटा क्वेश्चन इज 8th, उसका सेकंड पार्ट है, इफ वी प्लेस मैग्नेट इन कूल प्लेस रैप्ड इन अ कॉटन क्लोथ, तो क्या होगा? मैग्नेट को एक कॉटन के कपड़े में ठंडी थोड़ी सी, मतलब ज्यादा गर्म जगह नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, थोड़ा ठंडे टेम्परेचर पे रख दे, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द मैग्नेट? कैसे ही बोलो बेटा, क्या समझ आता है? वट एवर यू अंडरस्टूड जस्ट स्पीक आउट। यस बोलो। अगर हम मैग्नेट को सपोज कर लो एक रुमाल में बांध के रख दे, ठीक है, कॉटन के होते हैं हैंगी, रुमाल में बांध के रख दिया, और नॉर्मल जो है थोड़ा सा ठंडा जो टेम्परेचर, फ्रिज में नहीं रखना, इट डजंट मीन यू हैव टू कीप इन अ रेफ्रिजरेटर, कोल्ड टेम्परेचर में, थोड़ा सा कूल, जहां पर ज्यादा गर्मी ना आती हो, ठीक है, वहां रख दिया, तो क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस? क्या वो खराब होएगा या वो ठीक रहेगा? क्या लगता है? मैम इट विल स्टे सेफ। ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, है ना? तो ये दैट इज द आंसर। देखो अभी आंसर बता भी दिया आपने। सो यस, इट स्टे सेफ। ठीक है, दैट्स गुड। सिट डाउन बेटा। तो वी कैन से रिमेन सेफ, तो वो ठीक रहेगा। कमिंग टू थर्ड, हीटेड एट हाई टेम्परेचर, क्या हो जाएगा अगर गर्म टेम्परेचर पे हम रख देंगे? गुरसिमरत फ्रॉम सी सेक्शन, गुरसिमरत सी सेक्शन। आई कैन सी, आई नो स्टूडेंट्स वांट्स टू आंसर, बट सबका टाइम आना चाहिए ना। यस गुरसिमरत।
यस। Yes, beta. So what is the answer of eighth question's third part? Heated at high temperature. If we heat magnet, what is going to happen? Yes, beta. It will get It will get what बेटा? अगर हम मैग्नेट को हीट कर दें क्या हो जाएगा? क्या वो मैग्नेट रहेगा या नहीं रहेगा? ये बताओ पहले। नो, वो नहीं रहेगा। अगर कोई मैग्नेट मैग्नेट नहीं रहता तो उसको हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? लूज मैग्नेटिज्म। सेम वही। it will melt also. बेटा ना, यहाँ पर मेल्ट की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर मैग्नेट रहेगा या नहीं रहेगा उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इट लूज मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इट विल मेल्ट। इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा। जरा लगा के देखना कैंडल में, क्या वो मेल्ट हो जाएगा? नहीं होगा इतनी जल्दी। उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बट उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जरूर खत्म हो जाएगी। ठीक है। So coming to the fourth question, kept for a long time near other magnets without wrapping in a paper or cloth. अगर हम किसी मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के साथ रख दें काफी टाइम के लिए तो क्या होगा? What is going to happen in that case? Yes, 6B first bench boy. Yes बेटा। मैं स्लोली स्लोली वो उसका मैग्नेटिज्म लूज कर देगा मैग्नेट, अगर उसको हमने ऐसे रख दिया है। Yes, so again in this case also with the time it will lose its magnetism. ठीक है, sit down बेटा। Now coming to the question number 9. If a bar magnet is cut into two equal pieces, देखो अब मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ। Okay, I'll show you that. अभी मैं मैग्नेट को तोड़ के दिखाती हूँ। I have this magnet, ठीक है। I'll zoom it, ठीक है, ताकि आप देख सको what I'm going to show you here. ठीक है, तो यहाँ से ये हटा के, नाउ दिस इज मैग्नेट आई हैव। यहाँ देखो, कैन यू सी? ओके वेट। सो दिस इज मैग्नेट आई हैव। ये देखो मैग्नेट है पूरा पड़ा। मैं इसको नीचे फेंकती हूँ, ठीक है, और वी कैन से आई ब्रेक इट इनटू टू पीसेस। ये देखो टू पीसेस में किया। यू कैन सी दीज आर इन टू पीसेस। टू पीसेस हो गए, 1 and 2। अब ये जो टू पीसेस हैं वो दोनों ही एक कंप्लीट मैग्नेट बन जाते हैं। इट विल एक्ट एज कंप्लीट मैग्नेट। इट विल एक्ट कंप्लीट मैग्नेट मींस दोनों के पास साउथ एंड नॉर्थ दोनों पोल्स होंगे। साउथ नॉर्थ दोनों के पास होंगे। ऐसा नहीं है कि एक के पास होगा। कैसे कंफर्म कर सकते हैं? नाउ दिस इज बार मैग्नेट, सॉरी यू शेप मैग्नेट। इसमें रेड वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ब्लू वन। अब ये कंफर्म करने के लिए कि इन दोनों के पास ये पोल है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो साउथ वाला है, इसका साउथ वाला, पहले मैं इसको लेके आती हूँ एक एंड के पास। सो यू कैन सी ये वाला एंड जो था, दिस वन एंड, ये वाला, सी यहाँ पर ये दूर जा रहा है। इस वाले से साउथ से दूर जा रहा है। इट मीन्स कौन सा पोल हुआ यहाँ पर? साउथ और नॉर्थ? साउथ। साउथ, क्योंकि सेम सेम रिपेल। यू कैन सी ये देखो दूर जा रहा है, वो देखो भाग रहा है। कैन यू सी दैट? यस। अगेन थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाती हूँ। सी ये देखो दूर जा रहा है उससे। ये ये देखो दूर दूर जा रहा है इससे। मैं इसको पास ला रही हूँ, दूर जा रहा है। अब मैं इसको ऑपोजिट कर देती हूँ। अब मैं इसके सामने नॉर्थ पोल ले आती हूँ। सो यू कैन सी इट्स अट्रैक्टेड। अब हमें इससे पता लग गया दिस इज साउथ पोल एंड दिस यहाँ जो दूसरी साइड होगा वो नॉर्थ पोल है। तो ये जो मैग्नेट हमने तोड़े, इसका मतलब दे आर एक्टिंग एज कंप्लीट मैग्नेट और दोनों के पास नॉर्थ साउथ पोल है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कंफर्म अदर मैग्नेट ऑल्सो, कि दूसरे मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ पर है। तो कोई जो मैग्नेट जिसका हमें पता है उसके साथ हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर?
Yes. The answer is B option. आंसर में भी आगे, वेट लेट मी सी। ठीक है, सो नाइन्थ क्वेश्चन था, यस ईच पीस विल हैव बोथ पोल्स। सो नाउ वी नो द आंसर क्योंकि हमने भी करके देखा। सो नाइन्थ इज बी, दैट्स राइट। कमिंग टू टेंथ क्वेश्चन, ठीक है। सो टेंथ के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगेन वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स ए एंड बी। देखो उनके ऊपर मैग्नेट लगा रखा है, अगर देखोगे जो कार है उसके ऊपर मैग्नेट है। सो फर्स्ट कार नॉर्थ साउथ, फर्स्ट एक केस में क्या है नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ। सेकेंड केस में क्या है बेटा, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, इस पोजीशन में वो अलाइन है। ठीक है, सो अब इसको हम जरा करके देखते हैं। अब ये वैसे ही है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ये जो मैग्नेट वाला था, इट वॉज लाइक दैट ओनली। So instead of two cars, I'm showing with you one car and using U-shaped magnet, horseshoe magnet on another side. ठीक है? So I have same car. Now you can see magnet लगा रखा है. Red is for the north. This blue is for the south pole. ठीक है? अब मेरे पास ये मैग्नेट है, आई हैव दिस मैग्नेट। अब मैं इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ के पास लेके आती हूँ। फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, सॉरी उल्टा करते हैं चलो। फर्स्ट केस में साउथ और नॉर्थ जो है, ठीक है, दे आर फेसिंग ईच अदर। तो ये देखो अब मैं नॉर्थ को इस कार के पास लेके आती हूँ। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यू कैन सी इट इज कमिंग टुवर्ड दिस मैग्नेट। कैन यू सी, इट इज कमिंग टुवर्ड दिस मैग्नेट। देखो इस मैग्नेट के पास आ रही है, मैं इसको मूव नहीं कर रही, दिस मैग्नेट इज मूविंग दिस कार। सो देखो अगेन सी, इट इज कमिंग टुवर्ड दिस मैग्नेट। कैन यू सी दिस? Yes. तो दिस इज व्हाट हैपन इन फर्स्ट केस। और सेकेंड केस में क्या है, दिस साउथ ऑफ दिस कार, ये जो मैग्नेट का साउथ है इज फेसिंग साउथ ऑफ अनदर कार। तो देखो क्या होगा इस केस में, सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्या हो रहा है बेटा, आर दे कमिंग टुगेदर और दे गोइंग फार अवे? Repelling each other. सी या व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखो पीछे पीछे जा रही है ये। कैन यू सी दिस? Yes. So in first case attraction we observed, in the second case we observe repulsion. ठीक है, second case में हमने क्या देखा, they were showing repulsion. So now coming to the question number 10. So what is the answer of this? B option. B option. Yes, answer is D. Yes. So in first case attraction is there, ठीक है, because they are coming closer. Now coming to the third case, ठीक है, third case है, three magnets ABC were dipped one by one in a heap of iron filing. The amount of iron filing stick to them, the strength of these magnets will be. Iron filing जो है, iron filing वाला भी दिखाती हूँ मैं आपको फिर। Okay, I show you that also. I have also this iron filings, ठीक है। So C option. I'll show you बेटा, just wait a minute। ठीक है, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ so that you can see that. अब इसको ध्यान से देखना, लुक हियर। तो देखो ये आयरन फाइलिंग्स मैंने इसमें डाली यहाँ पर, और आई हैव दिस मैग्नेट विद मी, ये देखो मैग्नेट। अब आप देखना ये कहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, वेयर दीज आयरन फाइलिंग्स आर अट्रैक्टेड। आई एम मूविंग इट लाइक दिस, मैं पूरे को मैग्नेट को यहाँ पर मूव कर रही हूँ। ओके, आई एम मूविंग इट हियर लाइक दिस। नाउ मैं एंड में आपको दिखाती हूँ। नाउ वेयर दीज आर अट्रैक्टेड मोर, कहाँ पर अट्रैक्टेड है, कहाँ, यस। सो यू कैन सी ऑन द एक्सट्रीम एंड्स, जो पोल है उसके एक्सट्रीम एंड में यहाँ पर। तो इसके बेसिस पे हमें क्या पता चलता है, कहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, बीच में, साइड में, यस। At the poles.
एट द पोल्स, तो बीच में नहीं है, कम है, अट्रैक्ट है यहाँ पर बहुत कम है, बट हियर यू कैन सी द बंचेस. यस, so this is what this question is saying. So based on this, what is the correct answer, beta, of 11? Yes, which option? A option. Yes, it's A option. So option is A. ठीक है? So is the correct option. So now coming to the 12th question. So अभी हमने इसको दो मैग्नेट लेके किया था to find the polarity. ठीक है कि कौन सा नॉर्थ साइड है, कौन सी साउथ साइड है. We have done this. So based on this, what is the correct answer? A option. Yes, A is the correct option. ठीक है? So I'm writing it also. तो 11th का भी A है, 12th का भी A है. Coming to 13. If you place a paper clip near a bar magnet, it gets attracted. Explain why another paper clip is attracted to first paper magnet when it brought close to first one. So it's simple thing. अगर हमारे पास ये आयरन है, okay, what this question is saying. Firstly, see here. So this is the last question that we are doing. Reason assertion, beta, you do yourself. ठीक है? ये जो चार reason assertion है, I'll provide the answer to your teacher. ठीक है? So reason assertion का, and this is what the last activity that I'm going to show you. Paper clip की जगह I'm using iron nail. See, ये iron nail पर देखो, पहले यहाँ पर देखो, ये iron nail है और ये भी iron nail है. They are not attracting each other. अभी एक दूसरे को attract नहीं कर रहे. लेकिन when I bring this magnet close to this magnet, it get attracted. Now this is going to attract this one. Can you see? Yes. 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 So this is the question. Instead of paper clip, we took iron nail. ठीक है? क्योंकि I don't have paper clip right now, but this is the same thing. वो भी मेटल है, ये भी मेटल है, और यही क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट पेपर क्लिप को जब मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया, और when we bring it to the or close to the second iron nail or paper clip, it is attracting this also. What is the reason? So this is being asked here. तो फर्स्ट पेपर क्लिप बिकम्स टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि वो टेम्परेरी मैग्नेट, टेम्परेरी क्यों है? सी, अभी ये इसको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊंगी, इफ आई रिमूव इट, देखो मैं फर्स्ट वाली को हटा रही हूँ, ये देखो नीचे छोड़ दिया उसने दूसरी वाली को. सो इट मीन्स इट वॉज टेम्परेरी मैग्नेटाइज्ड. ठीक है? वो टेम्परेरी मैग्नेट बनी थी, परमानेंट मैग्नेट नहीं है. ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. तो Clear. 14 का आंसर भी इज ए. ठीक है? 13 का आंसर भी ए है. एवरीवन नोट डाउन, 13 आंसर इज ऑल्सो ए. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. So 14, 15, 16 and 17. These four reason assertion question. Firstly, try to do by yourself. Then I'll provide answer to your teachers. Teachers, I will provide the answer of these four questions. Okay. Please help, to solve this question. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay, students, your math class is going to start by. Bye, ma'am. You can see very well, beta. Look into your module. There are few sentences over here. Last time हमने HCF का factorization method किया था. Okay. And then you did in class the division method also. HCF का division method किया आपने? Ma'am, yes. And LCM also you have done? Ma'am, yes. Yes. Then now is the thing to understand कि हम उसको statement questions में how would we understand about HCF and LCM. C section बेटी mic off कर दो. Put up mic C section. C section children, put up mic. Otherwise your noise will come. Yes. Yes बेटा. Who? माइक ऑफ कर दो बच्चे. Put it off. क्योंकि आपकी जो डिस्टर्बेंस आएगी फिर क्लास में. आस्क करेंगे then you can put it off. Okay. Everybody look straight. Yeah, you are getting the module very good. You can see in the module
In the real life, we have to see when we use HCF and when we use LCF. Okay, you have to see जो भी क्वेश्चन हमें उसको आपकी रियल लाइफ से रिलेट करना है. How? Suppose you have 18 is equal to 9 twos are 18. You know it. 9 twos are 18. Everybody knows, right? तो can you tell me कि इसमें फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स कौन से हैं और मल्टीपल कौन सा है? रेज योर हैंड. If we write 18 is equal to 9 into 2 and then we write it as 3 into 3 into 3 into 2, sorry. 3 into 3 into 2, right? If I write like this, can you tell me what are the factors here? Sixth A section, Palak. A section, Palak आ गया बेटा. माइक ऑन करके मेरे को बताओ. माइक ऑन करो. टेल मी कि इसमें फैक्टर्स कौन से हैं और मल्टीपल कौन सा है. डू यू नो इट? माइक ऑन करो पहले. Yes. Palak, you don't know? Okay, go and sit and listen to me very carefully. Yeah, that girl who is raising her hand at the first bench. Yes, बेटा बता दो जल्दी से. Factors are 18, 9, 3, 1. दोबारा बोलो. Factors are 18, 9, 3, 1. okay. Now, if I write here कि 18 जो है एक बिगर नंबर है. Okay, sit down बेटा. Sit down. We can divide 18. We can divide. Listen here, अभी इसको note down नहीं करना. We can divide 18 by 3, 2. ठीक है. You know it कि 18 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 18 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं. तो 18 जो नंबर है, ठीक है, 18 नंबर जो है दैट इज द मल्टीपल. इसको हम बोलेंगे मल्टीपल. और जो स्मॉल लेटर्स हैं जिनसे हम इनको डिवाइड करते हैं वो दोनों क्या है उसके फैक्टर्स. ओके, अंडरस्टैंड फर्स्ट. छोटे नंबर जो है जो कि बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हैं दे आर फैक्टर्स and जो bigger number है that is a multiple. Okay, let us do one more example. Suppose I write here 6 is equal to 3 into 2. Right. तो यहां पे 6 क्या चीज है? मल्टीपल है या फिर फैक्टर है? At here मैं कहती हूँ कि 6 is divisible by 3. 6, write down, 6 is divisible by 3. इसको नोट डाउन करो ये एग्जाम्पल को. राइट डाउन एग्जाम्पल. This example we will use for your story sums. Write down example. 6 is equal to 3 into 2. Right? And 6 is divisible by 3. 6 is divisible by 2. ठीक है, जो बड़ा नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है. That you know it. Okay. So what is 6? 6 is equal to multiple of 3 and 2. 6 क्या होगा? मल्टीपल होगा 3 and 2 का. और 2 and 3 क्या होंगे बेटा? व्हाट आर दे? उनको क्या बोलेंगे? जो छोटे नंबर्स है वो क्या है? 2 and 3. 2 and 3 are factors of 6. Factors of 6.
रिमेंबर दिस, अगर ये चीज आपको याद रहती है कि बिगर नंबर जो है वो मल्टीपल है, उसके जो छोटे नंबर्स है उसके सामने जो प्रोडक्ट कर रहे हैं दे आर द फैक्टर्स ऑफ 6, देन यू विल अंडरस्टैंड द स्टोरी सम्स। जब हम कंडीशन उसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, दिस विल गाइड यू कि कब हमने एलसीएम निकालना है और कब हमने एचसीएफ निकालना है। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस स्मॉल थिंग एवरीबडी। दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि हम मल्टीपल किसको बोलते हैं और फैक्टर्स किसको बोलते हैं। हाथ खड़ी करो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस, वेरी गुड, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। आपने फिफ्थ में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है, अभी सिक्स में भी पढ़ा होगा, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हम कोई बड़ी चीज निकाल रहे हैं, कोई हमें इकट्ठी चीज चाहिए जिनको अभी हमने डिवाइड नहीं किया है, जिसको अभी हमने, जैसे स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के 30 स्टूडेंट्स हैं मान लो, 30 स्टूडेंट्स अभी इकट्ठे बैठे हैं, वो एक मल्टीपल चीज है। जब उनको बाहर ग्राउंड में बुला के हमने उनको रोज में खड़ा कर दिया, अलग अलग लाइन में खड़ा कर दिया, तो हमने क्या बनाया, उसके फैक्टर्स बना दिए। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? When you go out in the ground, your teacher says you, okay, stand in proper row, 10 स्टूडेंट्स एक रो में खड़े हो जाओ, बताते हैं ना कई बार आपको, या फिर 5 स्टूडेंट्स एक रो में खड़े हो जाओ। ठीक, तो वो क्या चीज है, जब हम सारे स्टूडेंट्स को, 30 स्टूडेंट्स को ग्रुप में चेंज कर रहे हैं कि ये 10 के ग्रुप में या फिर 5 के ग्रुप में, तो वो 5 या 10 क्या हुआ, फैक्टर्स। और इकट्ठे 30 स्टूडेंट्स क्या चीज है, एक मल्टीपल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. यस, ठीक है बेटा। तो इसी को ध्यान रखते हुए ये सिचुएशन जो आपके सामने मैंने लिखी है, इसी को आपने बार बार सोचना है और मेरे को बताना है कि वेदर वी आर फाइंडिंग एचसीएफ और एलसीएफ। फर्स्ट सिचुएशन इज, सी इन द मॉड्यूल, what is to be calculated in each of the following situations to get correct answer. First is, everybody see in the module, read with me. If we want to find greatest number that will divide given numbers, ध्यान से पढ़ो, एक बार और पढ़ो स्टेटमेंट को। विल डिवाइड को अंडरलाइन करो, विल डिवाइड, सेंटेंस में विल डिवाइड को अंडरलाइन करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी गुड, आई कैन सी हैंड, सी सेक्शन, वेरी गुड, जल्दी से बता दो व्हाट इज दैट। हाँ हाँ, एचसीएफ, रेज योर हैंड हु से एचसीएफ। वेरी गुड, वंडरफुल। विल डिवाइड, छोटा नंबर क्या करेगा, बड़े को डिवाइड करेगा। सो राइट डाउन एचसीएफ, उसके सामने यू कैन राइट डाउन एचसीएफ। वेरी गुड। सेकंड इज, इफ वी वांट टू फाइंड द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय। वेरी गुड, आई कैन सी सो मेनी हैंड्स। आर यू थिंकिंग ऑफ एलसीएम? वेरी गुड, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय को अंडरलाइन करो सेंटेंस में। तो ये आपको बता रहा है कि हमने निकालना है एलसीएम। ओके, उनके सामने सामने उनके आंसर लिखते जाओ, सेंटेंसेस को कॉपी डाउन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन इज, इफ यू वांट टू डिवाइड गिवन थिंग्स इक्वली अमंग सम पर्संस, डिवाइड गिवन थिंग्स, डिवाइड हमें करना है, ठीक है, डिवाइड गिवन थिंग्स। तो क्या करेगा, कौन डिवाइड करेगा इक्वली, एचसीएफ। ओके, राइट डाउन, इनके आंसर्स लिखो अभी इनके सामने। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द थिंग, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड वन इज एचसीएफ। फोर्थ वन इज, if we want to find the least number which leaves some remainder, लीव सम रिमाइंडर को छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़, लीव रिमाइंडर करता है या नहीं करता। लेट अस रीड फर्दर। व्हेन डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स, डिवाइडेड बाय गिवन नंबर्स, तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। राइट डाउन द आंसर्स, उनके सामने सामने सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके आंसर्स लिखो। फिफ्थ वन इज, इफ यू वांट टू अरेंज समथिंग इनटू रोज, किसी चीज को हमने रोज में डिवाइड करना है, अरेंज करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनको हमने रोज में खड़ा करना है, तो क्या निकालेंगे हम,
हु से HCF, रेज योर हैंड जिनके माइंड में आ रहा है कि HCF होना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. You're all very good children. You have understood the concept very well. We are arranging the students in rows. It means we are finding HCF. Sixth one. If we want to analyze when something will happen again at the same time. Something at the same time. कुछ चीज इकट्ठी हो रही है. Oh, I can see hands. Yes, yes, yes. Good. Very good. C section. Other girl. Uh, okay. B section, second bench boy. Yes. B section. जल्दी से बता दो बेटा. We are talking about sixth one. मैम ये शायद LCM. Yes. कुछ चीज इकट्ठी होने वाली है. एक बार हो चुकी है, रिपीट होना है उसने. वेरी गुड. तो उसके केस में हम क्या निकालेंगे? LCM. क्योंकि मल्टीपल चीजें हो रही हैं. पहले वो एक बार हो चुका है, दोबारा होना है. आपके स्कूल के आसपास मानो एक टेम्पल है. टेम्पल में बेल रिंग हो रही है, या फिर आपके स्कूल में बेल रिंग हो रही है. सपोज कर लो कोई ऐसा टाइम आया कि दोनों बेल्स इकट्ठी रिंग हुई. ठीक है. टू सी टुगेदर कि तो वो दोबारा कब रिंग करेंगी इकट्ठी, कुछ गैप के बाद. तो वो उसको केस में हम क्या निकालेंगे? LCM. ठीक है. सेवंथ इज इफ यू वांट टू परचेज टू गेट मल्टीपल आइटम्स इन ऑर्डर टू हैव इनफ. हमारे घर में पार्टी है, हमने कुछ चीजें खरीदनी है इकट्ठी. हम डिसाइड करेंगे कि कितने लोग आएंगे, उसके हिसाब से कितनी हमें पेस्ट्रीज चाहिए, कितने केक चाहिए, या फिर कितनी आइटम्स चाहिए खाने के लिए. तो वो सारी आइटम्स जो हमने इकट्ठी करनी है, उसके केस में हम क्या निकालेंगे? मल्टीपल चीजें. मल्टीपल का मतलब LCM. डू यू अंडरस्टैंड नाउ? कि ज्यादा चीज चाहिए तो हम मल्टीपल निकालते हैं, कम चीज चाहिए अगर हमने उनको अरेंज करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसके केस में हम क्या निकालेंगे? HCF. हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, गुड बेटा. लास्ट वन ए, इफ यू वांट टू फाइंड लेंथ ऑफ अ टेप रिक्वायर्ड, कि हमें कितनी कितनी लेंथ की टेप चाहिए, सो दैट टू मेजर द 3 or more lengths of each for in least time. Yes, C section. LCM. यहाँ पे टेप या HCF हमें फैक्टर निकालना है. टेप इज HCF. हमें ऐसी टेप चाहिए जो कि हमारी टेप जो है वो विंडो की लेंथ को भी कवर कर पाए, और उसको भी कवर कर पाए, डोर की लेंथ को भी देख पाए, हमारे बोर्ड की लेंथ को भी मेजर कर पाए. तो वो क्या होगा? हमारा छोटी लेंथ जो हमें चाहिए, दैट इज द HCF. राइट. लेट अस सी नाउ assertion reason. किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी आउट ऑफ दीज ऑल. ओके, चलो लेट अस सी assertion reason बेटा. फर्स्ट इज assertion last four two-digit multiples of 12. Last four two-digit multiples of 12. लिखो जरा इसके आंसर्स लिखो. लास्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 12 कौन कौन से होंगे? 12 का टेबल लिखो सारे. राइट ऑन 12 टेबल. You know 12 table? Very good. 12 ones are, 12 twos are. I'm done table. Done? Okay. Now tell me, assertion में they are saying कि हमारे पास लास्ट फोर डिजिट कौन से होने चाहिए? लास्ट फोर टू डिजिट नंबर कौन से होने चाहिए 12 के? डी सेक्शन, फर्स्ट गर्ल. I can see 60. your hand. क्या ये ट्रू है? assertion में दे हैं कि लास्ट फोर जो नंबर्स है वो है 48, 60, 72 एंड 84. क्या ये ठीक है? लास्ट फोर डिजिट यही वाली है 12 के? मैम नो. नो. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है. आपको टेबल आता है 12 का, यू नो कि इसके अलावा भी दूसरे होते हैं नंबर्स. ठीक है. रीजन, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट. नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं. हाथ खड़ी करो और सेइंग यस.
फाइनाइट मीन्स काउंटेबल, क्या आप काउंट कर सकते हो फैक्टर्स को? यस, they are finite, yes. So this is true. Reason is true. So it is D option. Note it down. Second question is assertion. LCM of 12 and 18 is 36. Yes. LCM of 12 and 18 is 36. Please calculate it. जल्दी से निकालो 12 and 18 का LCM. बताओ क्या क्या वो 36 आ रहा है? Who are getting it? Raise your hand. Who are saying yes, 36 आ रहा है? Very good, very good. You have found so fast. This is true. Okay. Reason is the lowest common multiple LCM of two or more given numbers is the lowest of their common multiples. LCM की full form क्या होती है? LCM तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, yes, लीस्ट कॉमन फैक्टर। yes. जो आपका sentence लिखा हुआ है that is the full form of LCM. That is LCM is the lowest common multiple of two or more given numbers. ठीक है, सो दिस इज ट्रू, तो ये आपके पास हो गई ई ऑप्शन। सेकंड की आपके पास ई ऑप्शन है, राइट। लेट अस डू फर्दर एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, 3 boys step off together from the same spot. 3 boys step off together. 3 boys खड़े हुए, 3 boys are there. They step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter. एक के 63 सेंटीमीटर है, दूसरे के 70 सेंटीमीटर है, एंड थर्ड वन इज 77 सेंटीमीटर। एक जो थर्ड वाला है उसके 77 सेंटीमीटर है स्टेप। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर? कितना कितना डिस्टेंस सबको कवर करना चाहिए, ओके, ताकि वो इकट्ठे आपस में फिर से जाके मिले। दे शुड मीट टुगेदर। अपनी फिगर एक आपके सामने होनी चाहिए आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो कितने कितने स्टेप्स चलेंगे। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर? कितना कितना डिस्टेंस कवर करें सो दैट ऑल कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। व्हाट वुड यू फाइंड इन दिस? आपको क्या लगता है कि एक चीज पहले हो रही है, इकट्ठे खड़े हैं, दोबारा उन्होंने इकट्ठे मिलना है? व्हाट वुड यू फाइंड इन दिस केस? रेपिटेशन। यस, बी सेक्शन। एलसीएम। You will find LCM. Okay, find it out. निकालो तीनों का। 63, 70 and 77. 63, 70 and 77. LCM निकालो इसका। Do you apply this method? Do you apply this method और separate वाला करते हो, factorization वाला? Okay, all right, then do by that method. You do like this. Okay, इनको separate separate करो. This is called factorization method. ऊपर वाला जो मेथड है दैट इज डिवीजन मेथड, दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से करो। एवरीबॉडी डू, लेट मी नो व्हाट इज कमिंग। डोंट सी ईच अदर्स नोटबुक, डू इट योरसेल्फ। यू हैव टू डू इन एग्जाम आल्सो योरसेल्फ। 63, 70 and 77. Start by the smallest number. Write down all the factors. Yes, very good.
ओके, काफी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं. डू यू नो एलसीएम कैसे निकालना है? ओके, 6A सेक्शन. कल्पना. कल्पना, हैव यू डन? कल्पना इज नॉट देयर. ज्ञान स्वरूप. ओके, कल्पना इज कमिंग. फाइन, कम बेटा. कल्पना, आप बता रहे हो मेरे को बेटे व्हाट इज कमिंग? क्या आंसर आ रहा है इसका? ए ऑप्शन. ए ऑप्शन 6930. 6930 मीटर. ए ऑप्शन. किस किस की आ रही है ये ऑप्शन? रेज योर हैंड. Very good, very good. You have found it. Good, very good. If you know factorization method, then it is fine. You do by that only. Okay, good, beta. Please sit down. Very good. You know these questions very well. Okay. Let us do second one. The least number which when decreased by 9 is exactly divisible by these all four numbers. When decreased by 9 is exactly divisible by this. How would you do this? आपने किए ये क्वेश्चन ऐसे वाले? Have you done such kind of questions in class? No? Yes. Okay. Okay, okay. Then tell me. It is of same kind. Yes, A section. पीछे third bench boy. Corner boy. Yes, come. Aju beta. I saw your hand. The least number which when decreased by 9 is exactly divisible by these all four numbers. किस किस को आता है ये क्वेश्चन? रेज योर हैंड till the time he comes and tell me. Very good. Start doing. Very good. Okay, good beta. E सेक्शन से मैंने किसको बुलाया था? Are you coming here? कौन आ रहे हैं सामने? ओके, डू इट इफ यू नो इट हाउ टू डू. वेरी गुड. हाँ जी, बोलो बेटा. माइक ऑन करो. आवाज क्यों नहीं आ रही है? माइक ऑन करो बेटा. मैम ए ऑप्शन. ये ऑप्शन. हाउ डिड यू डू? पहले मेरे को ये बताओ कैसे किया. मैम एलसीएम निकाल. किसका निकाला है आपने? कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो ना? मैम 63 71 यस. 12 16 and 20 24 and 48. and 48. यस. ओके, कितना आ रहा है आपके एलसीएम? कितना आ रहा है? मैम 16. 16. तो 16 आंसर हो जाएगा इसका. ओके, बैठो बेटा. सिट डाउन. I would call from 6B section. B section, yes, third bench boy. Yes, आजू बेटा. 48. आगे आंसर के अलावा मेरे को ये बताओ कि कर क्या रहे हो आप? टेल मी मेथड. ओके, कम फॉरवर्ड बेटा.
ए सेक्शन बेटा आपकी आवाज तो जस्ट मैम द आंसर इज बी ऑप्शन 48। बी ऑप्शन। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने किया कैसे इसको, हाउ डिड यू डू? मैम बाय एचसीएफ फाइंडिंग। HCL मैं बाय फाइंडिंग एलसीएम। LCM यस। ओके, किस किस का 57 आंसर आ रहा है? हाथ खड़े करो जिनका 57 आंसर आ रहा है। आप बैठो बेटा, सिट डाउन। जिनका 48 आंसर आ रहा है, ओके ओके, हैंड्स डाउन, hands down. Let us do next one, third one. The two numbers nearest to 10,000 which are exactly divisible by each of 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Two numbers nearest to 10,000. Nearest to 10,000 का मतलब उससे उसके आसपास होने चाहिए जो कि इनसे exactly divisible होंगे। तो exactly divisible में क्या करोगे आप? What would you find there? कोई ऐसा नंबर निकालना है जो कि इनसे exactly divisible हो। You will find the who are saying LCM, raise your hand. Exactly divisible by 2, 3, 4, 5, 6 और 7. Very good. आपको इसके बेटा ऑप्शन से भी थोड़ा सा क्लू मिल रहा है कि हमें एक बड़ा नंबर निकालना है। बिगर नंबर निकालने के लिए क्या करते हो? LCM. ओके, तो टेक आउट LCM, शुरू करो। स्टार्टेड, वेरी गुड। Start the LCM of 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Question number 3. You have understood this chapter very well. Like मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ जिससे आपको बाकी क्वेश्चंस भी समझ आएंगे. You should know it. Write down extra question. Before doing this, you should know these small questions. Okay, this is not in the module plus. You write down in the notebook. Find the least number. Write down this is extra question. Extra question. ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आने वाले हैं आगे. Okay. Find the least number. बेटे एक क्वेश्चन करना है आपने ये वाला एक्स्ट्रा. अगर ये समझ आ गया then you will understand all the questions. Find the least number which when divided by this is also important question. Don't think कि ये मॉड्यूल में नहीं है तो एग्जाम में नहीं आएगा. When the least number, find the least number which when divided by 20, 25 and 50 leaves the remainder थोड़ा फास्ट लिखो इसको, आपका टाइम भी हो रहा है. Find the least number which when divided by 20, 25 and 50 leaves the remainder 4 in each case. Okay, understand the question very well beta. See here, find the least number which when divided by हमें ये बता रहे हैं कि हमने इसके केस में LCM निकालना है. ओके, जब हमने इनका LCM निकाला, LCM ऑफ 20, 25 एंड 50, जब इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे जैसे आप निकालते हो ऑलरेडी, उसका आंसर आ रहा है 100. इसका आंसर है 100. जो गिवन नंबर्स है उनका आपको एलसीएम दिया हुआ है 100. नाउ दे आर सेइंग कि वी वांट अ नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 4 इन ईच केस. 4 रिमाइंडर आना चाहिए, तो उसके केस में हम क्या करेंगे? 100 प्लस 4, 104. इसका मतलब 104 ऐसा नंबर है कि जो कि जिसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये पूरा इनको एग्जैक्टली जो है डिविजिबल होगा. दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी?
मैम यस। Yes, raise your hand. This is very very important question. Basic question of all the questions. जितने भी क्वेश्चन आपके बाकी क्वेश्चंस हैं, you will understand them well. अगर आपको ये चीज समझ आ रही है कि हमने ऐसा नंबर निकाला सबसे पहले जो कि डिविजिबल है, क्योंकि हमें वो कह रहे हैं कि 4 रिमाइंडर है, 4 एक्स्ट्रा बच रहा है, उसके बाद 4 हमने ऐड करके बता दिया कि 104 इज सच नंबर जो कि इनसे डिविजिबल होने के बाद 4 को रिमाइंडर छोड़ता है। ओके बेटे, please note it down this solution, okay, and try other questions also from your module. Okay, all the best beta. मैं which option of 4? Bye bye, see you beta, all the best. Bye.